सीपीसी रेस जुडिकाटा बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड और बहुत ज्यादा सुनने में आता है। ये स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। मैंने इस पे वीडियो भी बना रखी है अलग से। रेस जुडिकाटा को समझने बहुत सिंपल है, लेकिन एक काम करते हैं, विल टेक द हाई रोड। सो वी रीड दिस। No court shall try any suit or any issue in which the matter directly or substantially in issue has been directly or substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any other claim litigating under the same title in a court competent to try subsequent suit or the suit in which the issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। ये क्या कह रहे हैं कि नो कोर्ट यानी कोई भी कोर्ट विल नॉट ट्राई एनी सूट या कोई भी इशू जहां पर मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली उस इशू में डायरेक्टली या सब्सटेंशियली किसी और इशू में फॉर्मर यानी पुराने सूट में सेम पार्टीज के बीच में क्लेम या लिटिगेटिंग सेम टाइटल के अंडर किसी सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट में अगर वो सूट सेम इशू से रिलेटेड इशू या रेज हो चुका है, कोर्ट उसको सुन चुका है और फाइनली डिसाइड कर चुका है, तो ऐसे सारे कोर्ट सारे मैटर्स को कोर्ट उनको नहीं सुनेगा, उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। किस पे? मैटर जो डायरेक्टली या सब्सटैंशियली in issue in the later suit was also directly and substantially in issue in the former suit। Former suit was मतलब between the same parties or parties claiming under the under them on the same title। Former suit was decided by the court competent, matter was heard and finally decided। For example, सब easily समझते हैं। ए ने बी को सू कर दिया ओनरशिप के लिए। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्या? एक्स। अब कोर्ट ने होल्ड किया कि ए जो है वो इज नॉट द ओनर और सूट खत्म हो गया। ठीक है। 2023 में दोबारा, ये 2020 में केस फाइल किया था, अब 2023 में ए दोबारा आ गया, ए ने बी को सू कर दिया क्लेमिंग दैट द ओनरशिप ऑफ द सेम प्रॉपर्टी एक्स। तो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला जाएगा कि ये बार्ड है बाय रेस जुडिकाटा। द इशू ऑफ ओनरशिप हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन 2020। टर्मिनेशन केसेस, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने फाइल किया सूट टर्मिनेशन के लिए कि उसका टर्मिनेशन इनलीगल है, कोर्ट ने होल्ड किया टर्मिनेशन वैलिड है, दोबारा एम्प्लॉय ने फाइल किया कि सीकिंग बैक वेजेस एंड ग्राउंड दैट टर्मिनेशन वाज इनवैलिड, ये फिर से बार्ड हो जाएगा क्योंकि वैलिडिटी ऑफ टर्मिनेशन जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। 1 to 8 में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट द सूट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड इन प्रायर टू अ सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट्स इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयरटू। मतलब जो पहले डिसाइड हुआ उसके बारे में है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन competence of the court shall be determined respective of any provision to any right appeal and decision of the court। Explanation 3 that above that the matter above referred to must of the former suit has been already alleged former suit has been alleged by one party and they are denied the admitted and expressly implied on the other party or other implied by the other। Explanation 4 any matter which might ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been matter directly and substantially in issue in such suit। Any relief claim in the plaint which is not expressly granted to the degree shall the purpose of the sections be deemed to have been refused। Where person litigating bona fide in respect of public right or the private right right claimed in common for themselves or other, all persons interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the persons of litigating। The provisions of this section shall apply to proceeding for the execution of a decree, and reference in this sections to any suit issue from a suit shall be constructed as reference of respectively to a proceeding for the execution of decree, question arising in such proceedings, and a form of proceeding for the execution of the decree, as issue heard and finally decided by the court of limited jurisdiction competent to decide to such issue shall operate as adjudicata in subsequent suit, nothing presenting in such court of the limited jurisdiction not competent to try such subsequent suit and the suit in which the suit which such issue has been subsequently raised। 1 to 8 में कहने का मतलब क्या है? फॉर्मर सूट डिसाइडेड अर्लियर इवन इफ फाइल्ड लेटर, मतलब ये है कि ये सेक्शन यस तो नहीं है कि रेस जुडिकाटा कहाँ अप्लाई होगा और कब अप्लाई होगा। तो एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो है क्या? The matter must have been alleged by one party and denied or admitted expressly or impliedly by other party। This ensure the issue was actually contested। Constructive res judicata 4 number जो है, if a party could have raised a ground of attack और डिफेंस इन दी अर्लियर सूट, अगर पहले वो आप रेज कर सकते थे बट आपने नहीं किया, तो ऐसा माना जाएगा कि उन आपने वो रेज कर लिया। फॉर एग्जांपल ए ने सू किया बी को पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, बी शुड हैव रेज द डिफेंस ऑफ एडवर्स पोजीशन कि उसने कब्जा कर रखा है बट डज नॉट, तो बी ने नहीं किया, तो बी अब बाद में ये नहीं कह सकता कि अरे मेरे से मिस हो गया। इससे क्या प्रिवेंट होता है? इससे ग्रांटेड रिलीफ रिफ्यूज इफ रिलीफ इज क्लेम्ड बट नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड। तो लॉ ट्रीट करता है कि वो रिफ्यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल इन अ सूट
सीकिंग डिक्लेरेशन टाइटल पोजीशन एंड इंजंक्शन। अगर डिक्री में सिर्फ डिक्लेरेशन दिया गया है, पोजीशन के लिए साइलेंट है, तो ऐसा माना जाएगा कि पोजीशन को रिफ्यूज किया गया है, तो वो दे कैन नॉट बी क्लेम्ड इन अ न्यू सूट, representation suit when few person litigate bona fide in common right on behalf of many। तो all persons जो हैं वो इंटरेस्टेड इन पार्टी हैं, तो वो सबको ट्रीट किया जाएगा इक्वली। फ्यू विलेजर्स हु प्रोटेक्ट टू विलेज पाथवे, ठीक है, देयर डिग्री बाइंड्स द एंटायर विलेज, तो पूरे गांव पे एप्लीकेबल होगा वो। एक्सप्लेनेशन, रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग नॉट ओनली सूट्स। जो इशू है यहाँ पे फाइनली डिसाइड हो जाता है इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, विच ऑल्सो ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा in later execution proceedings or decisions by a court of limited jurisdiction. Even if the first court had limited jurisdiction, its decision on any issue that it could be decided binds a party in a later suit। जैसे कि रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड कर दे कि कौन टेनेंट है, तो सिविल कोर्ट में बाद में आप इसको रीओपन नहीं कर सकते क्वेश्चन टेनेंसी का। इसमें एक सत्याधन घोषल वर्सेस दियोरोजन देवी समथिंग कोई जजमेंट है 1960 की, जिसमें रेस जुडिकाटा को बताया गया था कि दिस अप्लाइज एट ऑल स्टेज इंक्लूडिंग इंट्रोलेकेटरी मैटर्स। अगर फाइनली डिसाइड हो गए हैं, एक दरियो वर्सेस स्टेट है, जिसमें रिट पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी हाईकोर्ट से, और फ्रेश रिट रेस जुडिकाटा अप्लाई हुआ था रिट पे भी। ऐसी एक है केस जिसमें एक अपील फाइल की थी, जो अपील डिसमिस हो गई थी ऑन मेरिट्स ऑफ डिफॉल्ट, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल माना गया था और रेस जुडिकाटा अप्लाई किया था। सिमिलर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को एक्सप्लेन किया है एक फॉरवर्ड कंजक्शन वर्सेस प्रभात मंडल की जजमेंट है, जिसमें स्ट्रांगली कहा गया है कि एनी इशू दैट माइट हैव आउट टू हैव बीन रेज्ड अर्लियर इज बार्ड लेटर। अगर आप पहले उठा सकते थे, नहीं उठाया, तो वो अब बार्ड है, उनको अब दोबारा नहीं उठा सकते। जैसे कि हमारा ही एक केस है, उसमें क्या हुआ था, एक एम्प्लॉय था, उसको श्रीलंका भेजा था, उसने कहा कि मेरे को जो रेज्ड अमाउंट है श्रीलंकन करेंसी में मिलना था लेकिन नहीं दिया गया था, तो कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उसके खिलाफ एक्शन हो गया था, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उसको निकाल दिया था क्योंकि वो श्रीलंका से वापस नहीं आ रहा था ऑन अ गिवन डेट टाइम। तो बाद में आ गया था, पहले जाना था उसको। तो ये इशू हुआ, तो कैट ने ऑर्डर कर दिया, उसको बैक वेजेस कुछ दे दिए थे, लेकिन फिर वो दोबारा अभी उसने फाइल कर दिया था केस कि नहीं नहीं मेरे को तो ठीक से पैसा नहीं मिला, दोबारा दे दो। तो सेम इशू पे जब काम हो चुका है, तो केस कोर्ट ने बोला कि इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। सो दिस इज रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा इज बेसिकली टू सेव टाइम ऑफ द कोर्ट व्हेन, जिससे री लिटिगेशन बचती है। कोर्ट का मोस्ट प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं होता जब सेम इशू पे काम हो चुका है, तो सेम पार्टीज के बीच में सेम इशू सेम सब्जेक्ट मैटर पे अगर आप दोबारा जाते हैं, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। कोर्ट ये बोलेगा कि हम पहले इस पिटीशन दे चुके हैं, दैट्स इट, थैंक यू।